Respected dignitaries, governing body members of RAV, Director RAV, Dr. Vandana Siroha ma'am, Gurujans, I welcome you all in another intellectual session of Gyan Ganga webinar series. Today's guest speaker is Dr. Rajiv Mehta, Ayurvedic Medical Officer, Government Ayurvedic Dispensary, Mukandpur, Directorate of Ayurveda, Punjab, Department of Health and Family Welfare, who has joined us today in the 245th episode of this knowledge voyage. I, Dr. Garima Singh, on behalf of RAV, welcome you all for today's session. On the onset, we would also like to express our heartfelt gratitude and welcome our mentors who have always been there to guide, motivate, and encourage us for sustenance of this series. Respected Vaidya Shri Devendra Trigunaji, President of GB RAV, Respected Vaidya Shri Rajesh Koteja Sir, Secretary, Ministry of Ayush, Respected Dr. Vandana Siroha Ma'am, Director of RAV. Let us begin the session by seeking the blessings of Lord Dhanvantari. Namami Dhanvantarimadhidevam Surar Surarvandit Pad Padmam Lokir Jararuk Bhai Mrityunasham Dhataramisham Vipadhashadinam. Om Dhanvantaraya Namah. Now, I would like to introduce today's expert, Dr. Rajiv Mehta sir, who is going to throw light on the topic of health loss. It is my great pleasure to introduce Dr. Rajiv Mehta sir. Dr. Rajiv Mehta is an Ayurvedic physician, public health professional, and academician with over 15 years of experience in clinical practice, research, and health administration. He is currently serving as Ayurvedic Medical Officer under the Directorate of Ayurveda, Punjab, and is pursuing a PhD in Ayurveda. He holds an MD, MPH, and PG diploma in medical law and ethics. Dr. Mehta has contributed extensively to Ayush mainstreaming, training, and policy implementation under national health programs. He is a member of national and state level committees, a frequent media speaker, and recipient of prestigious awards including Arya Bhishak Award 2025. Now, I would like to invite Sir to proceed with the lecture. Before we start the session, I request you all to please switch off your mics. Thank you, Dr. Garima. ध्यायतो शिवम परम तत्वम विचार वेद्यम गौरी अभिष्ट फलदाम सगणम गणेशम धन्वंतरी निरुपवरम मुनि शुश्रुतादीन आत्र्य उग्रपद सम शीर्षा नमामि. श्रद्धेय वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, श्रद्धेय सेक्रेटरी आयुष वैद्य राजेश कोटेचा जी, श्रद्धेय डायरेक्टर आरएवी मैडम वंदना सिरोहा जी, आरएवी के सभी गुरुगण, गुरुजन और आरएवी के सभी शिष्य. हम लोग टेक्निकली बहुत एक्सपर्ट होते हैं सभी अपनी अपनी जिस विधा में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस विषय के ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो पब्लिक हेल्थ रिलेटेड एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो हमें गवर्न करते हैं, उनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी होती है और वहां पे हमें कई बार काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. तो मैं भी आप में से हूं. मैं पंजाब में, जैसे डॉक्टर गरिमा ने बताया, एज आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूं. तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है आप सभी लोगों से डिस्कस करने का और जो मुझे पता है वो आपको बताने का, और जहां जहां पे मेरी लैकिंग है मैं एक्सपेक्ट करूंगा और आप कहीं गाइड करे कि जहां पे कोई नहीं है. तो हम शुरू करते हैं हेल्थ लॉज के ऊपर. सबसे पहले तो हेल्थ लॉ है क्या. सामान्य विषय में जब हम बात करते हैं, बिहेवियर को रेगुलेट करता है, ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करता है ताकि हम. सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, थोड़ा ना आवाज का सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, शायद थोड़ा नेटवर्क इशू है सर. आवाज टूट रही है क्या? हाँ जी सर, थोड़ा सा बीच बीच में. अभी आ रही है? जी सर, जी सर. तो लॉज जैसे लिखा है, लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर, ताकि हमारा जो बिहेवियर है वर्ल्ड के प्रति या हमारे पेशेंट के प्रति वो जो है वो
ठीक रहे, जिससे हमारे पेशेंट को नुकसान और हम भी अपना काम करें। तो पब्लिक हेल्थ लॉज इसलिए बनाए जाते हैं कि जो हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनको अच्छे से हैंडल किया जा सके, पब्लिक के लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, उनको अच्छे से हैंडल किया जा सके, और डॉक्टर जो है वो पेशेंट के साथ एक्सेस ना करे, और दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स के राइट एंड प्रिविलेजेस हैं वो भी जो है उसको मिलते रहें, और पब्लिक का जो बेनिफिट है वो भी होता रहे। तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी, क्योंकि डॉक्टर्स को उसके राइट्स और प्रिविलेजेस मिलेंगे बाय लॉ, और पेशेंट को जो है वो जो हेल्थ उसके रिलेटेड इश्यूज हैं उसके विषय में ठीक से जानकारी मिलेगी और ट्रीटमेंट मिलेगी। तो क्योंकि हर आदमी का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हेल्थ राइट देता है, राइट टू हेल्थ देता है, राइट टू लाइफ देता है। जो राइट टू लाइफ है उसी के अंदर जो है वो राइट टू हेल्थ छिपा है और राइट टू डेथ भी छिपा है। तो इसमें विषय में डिफरेंट डिफरेंट स्टैट्यूट्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, कोर्ट की जजमेंट्स हैं, और हमारे जो हैं लॉज हैं, लेबर लॉज हैं। तो इन सब के विषय में जो है वो हेल्थ लॉ बताता है कि कैसे हमें बिहेवियर करना है और कैसे पेशेंट का बेनिफिट करना है, और अपने राइट्स एंड प्रिविलेजेस जो है वो भी हमें मिलते रहें। तो जो मेन हेल्थ का जो इशू है वो दैट इज द स्वस्थ स्वस्थ रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीजेस एंड हेल्थ ऑफ व्हाट हेल्थ लॉ डज, रेगुलेशन ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन। जितने भी जैसे हमारे कॉलेजेस हैं या हमारी हेल्थ प्रोवाइडिंग डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या हमारे प्रोफेशनल्स हैं, उन सब का रेगुलेट करना, उनकी वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, उनकी क्या क्या फीस होगी, वो कितना सा पेशेंट को किस चीज के लिए चार्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अगर वो चार्ज करते हैं उनके ऊपर कौन सा एक्ट लागू होता है, अगर वो नहीं चार्ज करते हैं तो कौन सा एक्ट लागू होता है, कौन सा नहीं होता है। और हमारा जो फूड सेफ्टी है, एनवायरनमेंट है, लोगों को अच्छा मिले, उसके विषय में जो उसमें हमारा आयुर्वेद का जो एनवायरनमेंट के अलग से एक्ट है, तो उसमें आयुर्वेद का जो रोल रहता है हमारे हॉस्पिटल का वो बायोमेडिकल वेस्ट के थ्रू रहता है। और फूड सेफ्टी है, और हमारे पास जो पेशेंट कोई फीमेल आती है डिलीवरी के लिए, हम अपने हॉस्पिटल्स में क्लिनिक्स में अगर करते हैं तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जो है वो ठीक रहे, ये एक मतलब पूरा समग्र उसको कवर करता है। और सभी लोगों को जो बिल्कुल एंड पे खड़ा है लैडर के, उसको भी जो हेल्थ फैसिलिटी मिलती रहे, हेल्थ इक्विटी का इसमें जो है वो प्रावधान रहता है कि सबको बराबर जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज की, हेल्थ प्रोफेशनल्स की, हेल्थ की एक्सेस हो, हेल्थ केयर सर्विसेज जब को सबको जो है विदाउट एनी किसी के साथ कोई भेदभाव किए बिना सबको मिलती रहे, विदाउट एनी भेदभाव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, तो सबको जो बराबर मिलते रहे, ऐसा ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे हेल्थ लॉज का रहता है। और ये आया कहाँ से, हेल्थ लॉज बने क्यों, मतलब क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अंडर आर्टिकल 21, वो हमें हर पेशेंट को नहीं, हर नागरिक को जो है एवरी एवरी सिविलियन इट गिव्स राइट टू लाइफ। तो उसी में हमारा राइट टू हेल्थ और राइट टू डेल्थ और राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी जो है वो सभी देता है। ये जो बॉन्ड है सभी स्टेट्स पे, स्टेट गवर्नमेंट्स पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जहां से उन्होंने डायरेक्शन लेनी है, वो मतलब उनको कोर्ट में तो नहीं उनसे मिलता, लेकिन डायरेक्शन देते हैं गवर्नमेंट्स को कि इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो आर्टिकल 39, 41 और 42 में जो है वो सभी को मतलब स्टेट ने हेल्थ की फैसिलिटी वो प्रोवाइड करानी है। फिर कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जैसे परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। इसमें मतलब आपका जो क्लिनिक है या जो भी सेंटर है या डिस्पेंसरी है, वहां पे आपके पास अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है तो आपके पास जो है आपका ये राइट नहीं बनता बल्कि कि आप उसको मना करें या ना करें। वहां पे आपका बिल्कुल राइट नहीं है, आपका ये फर्ज बनेगा वहां पे कि आपको पेशेंट जो है उसको जो आपके पास फैसिलिटी है, इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आता है, अगर उसके पास कोई चार्ज देने के लिए है या नहीं है, विदाउट कंसिडरिंग दैट, तो आपने उसको अपने सेंटर में फैसिलिटी देनी है जो भी आपके पास अवेलेबल है। और अगर उससे ज्यादा उसको फैसिलिटी की जरूरत है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको जो है आपका आपका ही फर्ज बनेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपके ऊपर एक्शन होगा कि आपने उस पेशेंट को वैसी फैसिलिटी जहां पे भी अवेलेबल है आपने वहां पे उसको पहुंचाने का, चाहे खुद या
आप किसी को हायर करें, उसको पहुंचाने का जो फर्ज है वो आपका है। आपने वहां पे उस फैसिलिटी पे पहुंचाना है उसको, कि उसको जो आगे की फैसिलिटी है, आगे की हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ केयर है, वो वहां पे जाके मिल सके। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्टिव दिया था परमानंद कटारिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो ये सभी डॉक्टर्स, इफ इट इज एलोपैथिक डॉक्टर, वेदर इट इज आयुर्वेदिक डॉक्टर, वेदर इट इज यूनानी डॉक्टर, सिद्धा डॉक्टर, एनीवन, सभी के ऊपर ये इम्प्लीमेंटेड है कि कोई भी डॉक्टर के पास इमरजेंसी पेशेंट आता है तो उसने उसको हैंडल करना है। नहीं हैंडल कर सकता है, जितना सा हैंडल कर सकता है उतना करके नेक्स्ट फैसिलिटी तक पहुंचाने का, टर्शरी केयर आइदर सेकेंडरी केयर, तो वहां पे उसको पहुंचाने का उसने प्रबंध करना है। फिर आपकी ड्यूटीज क्या क्या हैं, ये तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक डॉक्टर का जो है एक पेशेंट के प्रति क्या फर्ज रहता है, क्या ड्यूटी रहती है। तो इसमें सबसे बड़ा ये है कि आप, जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। तो जो डॉक्टर है वो रीजनेबल रीजनेबल केयर देगा। रीजनेबल केयर का मतलब है कि आपके पास जो केयर अवेलेबल है, और जितना सा आप कंपिटेंट हैं, जितना सा आपके डिग्री के बराबर का कोई डॉक्टर कंपिटेंट होता है, उतनी सी आपकी कंपिटेंसी मानी जाती है। अगर उससे ज्यादा की कंपिटेंसी है चाहिए पेशेंट को, अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें आप दोषी नहीं है, लेकिन जितनी सी आपकी कंपिटेंसी है उतनी कंपिटेंसी के अकॉर्डिंग आप केयर उसको दे रहे हैं, दैट इज नोन एज, दैट विल बी कंसिडर्ड एज रीजनेबल केयर आपने दिया है। अगर आपने उसके बराबर नहीं दिया है देन यू आर नेग्लिजेंट। और आपके पास स्किल होनी चाहिए, एवरेज डिग्री ऑफ स्किल जो है आपके बराबर के जो प्रोफेशनल बंदे के पास होगी उतने से आपके पास स्किल हो, तो वो आपने स्किल के साथ पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। और जितनी आपकी ट्रेनिंग है आपने उतना ही काम करना है, उतना एक्सपर्टीज करना है। अगर आगे का है तो उसको जो है आगे भेजना है, उससे ज्यादा का काम आपने नहीं करना है। लेकिन जो हमारी कंसेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, वो दैट इज इम्प्लाइड करंट, दैट इज नॉट एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट इज लिखा हुआ होगा किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, दैट इज एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज कि आपके पास लिखा नहीं है लेकिन वो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट है। जब आपके पास पेशेंट आ गया, आपने Long उससे back, चार्ज Reko. किया कोई फीस। ಬಾದಾಮಿಯನ್ನ ಬಾದಾಮಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪಿಂಚ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾ मेरी आवाज आ रही है साफ से? ಅಮ್ಮ ಎರಡು ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು. Sorry, sir. Sorry, sir. Please mute your mic. मेरी डॉक्टर गरिमा, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर। ठीक है। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो जब पेशेंट आपके पास आ गया और आपने उससे जो आपकी फीस है वो चार्ज की, या एक फैसिलिटी में आप काम करते हैं जहां पे आप उससे किसी भी पेशेंट से आपकी फीस लेते हैं मेडिसिन की और कंसल्टेशन की, और पेशेंट आपके पास आता है, तो अपने आप से इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके ऊपर लागू हो जाता है। वो कोई रिटर्न में उसमें कोई जरूरत नहीं है। और फर्स्ट एड इन इमरजेंसी की हमने बात कर ली है, लेकिन कहाँ कहाँ पे जो है वो एस्टेब्लिश नहीं होता है एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन जब आप करते हैं, और लाइफ इंश्योरेंसेस के लिए जब आप एग्जामिनेशन करते हैं, अपॉइंटमेंट बाय द ट्रायल कोर्ट, और एग्जामिनेशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ एन अटॉर्नी फॉर लॉ सूट पर्पसेस। तो इन 5 स्थितियों में जो है वो आपके ऊपर इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंडर आप, अंडर द स्फीयर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप नहीं आएंगे अगर इन इन स्थितियों में आपने पेशेंट को जो है देखा है, उसकी ट्रीटमेंट की है, तो आपके ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। देन ये हम सभी जानते हैं कि जो हमारे प्रोफेशनल सीक्रेट्स रहते हैं, जो पेशेंट हमारे पास आता है वो हमें अपने फैमिली के, अपने पर्सनल, अपनी डिजीज से रिलेटेड, और कई बार अपने जो है बहुत सारे, बहुत बहुत ही ज्यादा जो पर्सनल मैटर्स होते हैं उनके बारे में डॉक्टर को बताता है, ये सोच के कि ये डॉक्टर और मेरे बीच में रहेगा। तो ये डॉक्टर की ड्यूटी बनती है कि वो जो प्रोफेशनल सीक्रेट्स है वो अपने पास रखेगा, किसी को नहीं बताएगा। लेकिन कहीं पे आपको बुलाया गया है किसी कोर्ट ने या किसी अथॉरिटी ने जहां पे आपको उनके बारे में बताना है, तो फिर आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो आप उनको, जैसे कोर्ट में गए हैं, कोई पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी है कुछ और कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, तो उन सबको आपने उसकी पेशेंट की जो राइट डिजीज कंडीशन है वो बोथ इन रिटन एंड ओरल, जिस तरह से वो चाहेंगे उस तरह से आपने उस अथॉरिटी को पेशेंट के बारे में बताना है। अदरवाइज आपने जो पेशेंट के सीक्रेट्स हैं जो उसने आपको बताया है वो आपके और आपके पेशेंट के
बीच में रहेंगे। अगर आप इसको ब्रीच करते हैं देन यू विल बी कंसिडर्ड नेग्लिजिएंट। और बहुत सारे जो है लॉ है जो हमें गवर्न करते हैं। आर्टिकल 21 की हमने बात कर ली। देन बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सब, देन ड्रग एंड मेडिसिक रेमेडीज एक्ट 1954 है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, देन एनवायरनमेंट एक्ट है, एमटीपी एक्ट है, एनसीएसएम का एक्ट है और बोर्ड ऑफ एथिक्स की रेगुलेशन है, पीसीपी एनडीटी एक्ट है, एमटीपी एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है। बाकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जैसे आयुष्मान भारत है, एनएचएम की है, सीजीएचएस की है और डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं, तो वो सभी के अंडर बोथ प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स हैं वो आते हैं। कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर ही इम्प्लीमेंटेड है, उसमें प्राइवेट डॉक्टर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। और कुछ जो स्कीम्स हैं वो उसमें प्राइवेट डॉक्टर, लेकिन जो एक्ट्स हैं और रूल्स हैं वो सभी के ऊपर बराबर रूप से इंप्लीमेंट होते हैं, वेदर इट इज ए गवर्नमेंट डॉक्टर और इट इज ए प्राइवेट डॉक्टर। तो अब हम बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 2016 की। तो आपके पास चाहे वो आप आयुर्वेद में काम करते हैं या एलोपैथी में काम करते हैं, आपको एज पर द मैंडेट ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 यू नीड टू टेक द ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न्ड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जिस भी आप स्टेट में प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ के जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस है उसमें अभी तो ये काम सारा ऑनलाइन है, उसमें आपने वहां से ऑथराइजेशन लेनी है कि आपने अपने क्लिनिक में, आपने अपने हॉस्पिटल में, आपने अपनी डिस्पेंसरी में आप जो है बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करेंगे। उसकी क्वांटिटी मेंशन होगी कि हर महीने जो है आप इतना सा अप्रोक्सीमेटली जनरेट करेंगे और उसको जो है बायोमेडिकल वेस्ट के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग वहां पे उसको स्टोर करेंगे। उसको आप जो है उसको, जो एजेंसी है उसको इकट्ठा करती है उसके पास देंगे। तो आपके पास क्या क्या ड्यूटी आपकी बनती है जब बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, आप जो है सेग्रीगेशन करेंगे उसकी। आपने जो है वो पट्टियां कहाँ डालनी हैं, ग्लव्स कहाँ डालने हैं, नीडल्स कहाँ डालनी हैं, जो आपका लिक्विड सर वेस्ट है वो कैसे उसको। सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। एक मिनट, अभी हो रही है? सर ओवरलैपिंग हो गई है स्क्रीन पे। मैं दोबारा करता हूँ। जी सर। अभी आ रही है? नहीं सर, अभी नहीं नहीं आ रही सर। नहीं आ रही? नहीं सर। नहीं आ रही सर। अभी आ रही है? हाँ जी सर। आ रही आ रही। ठीक है। तो आपने जो हम थे बायोमेडिकल वेस्ट जो होगा उसको आपने सेग्रीगेट करना है। करना मतलब आपने उसमें आपके जो कंटेनर होंगे वो रेड कलर है, ब्लू कलर है, येलो कलर है, तो जिस जिस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग जो जो जिसमें डालना है वो आपने वहां पे उसको डालना है। दैट इज द सेग्रीगेशन ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। देन सेफ स्टोरेज। सेफ स्टोरेज का मतलब है कि करके रखना है, जो भी आपका कंटेनर उसका मुंह रहता है खुला रहता है उसको नहीं रखना है, उसको बंद रखना है। और उसको रूटीनली जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है उनको देना है। उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है या 3 साल का, कुछ एजेंसीज करती हैं, वो प्राइवेट एजेंसीज होती हैं। उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे रिटर्न में, उनकी एक फीस रहती है वो आप फी पे करेंगे। देन उनकी मंथली फी रहती है वो आप पे करेंगे हर मंथ। और जो है उस वेस्ट को जो है हर रोज डेली विद इन 24 आवर्स
उस कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी की गाड़ी आपके पास आएगी और उनको आपकी ड्यूटी बनती है कि वो उनको आप जो आपके पास वेस्ट जो जनरेट हुआ है वो उनको हैंड ओवर करें। और जो आपके पास लिक्विड वेस्ट है या माइक्रोबायोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी का कोई वेस्ट है तो उसने आपने अपनी फैसिलिटी के अंदर प्री ट्रीटमेंट करनी है। बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जिनके साथ उसकी प्री ट्रीटमेंट होती है और उसको डिसइंफेक्ट करने है। उसके बाद जो है वो जो भी आपके पास डिस्कार्डिंग का तरीका है, आपके पास म्यूनिसिपल कमेटी का कोई जो वाटर डिस्पोजल है उसका तरीका है, सीवरेज वेस्टेज का है, तो उसमें आपने उसको जो है डिस्कार्ड करना है। और एक आपकी तीसरी ड्यूटी बनती है कि जो भी आपके पास हेल्थ का स्टाफ है, आपके पास नर्सेज हैं या उपवैद्य हैं या आपके पास कोई नया डॉक्टर है या आपके जो आपके अंडर स्टूडेंट्स हैं, उन सबको जो है पीरियोडिकली उनको ट्रेन करना है, उनको बताना है कि किस किस बकेट में कौन कौन सी कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग कौन कौन सा वेस्ट किस में पड़ेगा। उसकी बायोमेडिकल वेस्ट की गाइडलाइंस रहती हैं, जो आपका कंसर्न स्टेट होगा वहां से आपको वो गाइडलाइंस मिल जाएंगी, तो वो आपने क्लिनिक में लगा के रखनी है। और जो आपके जो ये जो कंटेनर्स हैं ये सभी जो हैं विजिबल जगह पे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत पीछे जगह छुपा के रख दिया है, सबको दिखना चाहिए कि यहाँ पे आपका कंटेनर पड़ा है और उसमें जो है वेस्ट डालना है। तो ये आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी की उसमें ड्यूटीज रहेंगी। देन कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो होती हैं जो लेके जाती हैं आपके वहां से, तो उन्होंने जो है आपके वहां से लेके जाना है उसको, और उसको जो व्हीकल आएगा डेली आएगा 24 आवर्स में एक बार उसको आना चाहिए। अगर आपके पास नहीं आता है, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है, अगर आपके पास नहीं आता है तो जो भी वहां पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है कहीं पे यूटीज में, तो उसको इन्फॉर्म करना है। बाकी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो ऑथराइजेशन देते हैं और दोनों को चेक करते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी को भी और कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी को भी, कि वो अच्छे से अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो उनकी पेनल्टी होती है, वो आपकी ऑथराइजेशन भी कैंसिल कर सकती हैं और आपको चार्जशीट भी कर सकती हैं कोर्ट में, उनके पास ये अधिकार रहता है। और आपका एक और काम होगा कि आप अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट जो है, उनका एक परफॉर्मा रहता है, उसके ऊपर क्वार्टरली रिपोर्ट जो है वो कंसर्न स्टेट या यूटी की जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको उस परफॉर्मे में आप भर के देंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्शन एक्ट जो है 2019, ये हमने बात की बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स की। तो इसमें अगर किसी की क्वेरी है, डॉक्टर गरिमा बाद में क्वेरीज लेंगे कि अभी ले सकते हैं? चलो, डॉक्टर गरिमा शायद कहीं बिजी होंगे या आपका ना म्यूट है माइक। जी सर। डॉक्टर गरिमा जो डॉक्टर गरिमा जो क्वेरीज हम जी सर। ना सर लास्ट में क्वेरीज सभी जो हैं बाद में लेंगे क्या अभी बीच लास्ट में में ले सकते हैं? लास्ट में क्वेरीज लेंगे सर। ठीक है, तो जी। बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के लिए जो आपकी क्वेरीज होंगी वो आप लिख लीजिए और लास्ट में जो सेशन के एंड में हम इनको ले लेंगे। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें एज सच कहीं डॉक्टर का मेंशन नहीं है कि स्पेसिफिकली डॉक्टर का मेंशन हो कि डॉक्टर के ये ड्यूटीज है एज पर द एक्ट, लेकिन जो उसके क्लॉजेस दिए हुए हैं, सेक्शन दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग जो है वो सर्विस देते हैं क्योंकि पेशेंट को, और हम उसके लिए फीस पेड मेडिकल सर्विसेज, तो उस लिए कोर्ट ने उसको जो है वो अंडर द सर्विस माना है कि पेशेंट जो है दे आर कंज्यूमर्स एंड डॉक्टर्स दे आर गिवर्स। सो इफ देर इज एनी डेफिशिएंसी इन द सर्विस बाय द गिवर to the person who is seeking service or who is taking service, then under Consumer Protection Act 2019, इसका आपने बहुत सारा ध्यान रखना है क्योंकि आजकल जो है वो बहुत सारी अवेयरनेस है लोगों के बीच में और फेक भी बहुत सारे जो हैं वो केसेस डॉक्टर्स के ऊपर आते हैं कि उन्होंने नेग्लिजेंसी की है। तो ये कहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट होगा, सबसे बड़ी बात है कि सीपीए 2019 जो है वो कहाँ कहाँ पे जो है कैसे कैसे एप्लीकेबल होगा, इंप्लीमेंट होगा। जहां पे भी आप गवर्नमेंट या प्राइवेट आप पेशेंट से पेड ट्रीटमेंट उसको देते हैं, आप उससे कंसल्टेशन लेते हैं, आप मेडिसिन का चार्ज करते हैं,
आप उसके हॉस्पिटल में जो है स्टे का चार्ज करते हैं, आप कोई सर्जरी करते हैं उसका, मतलब किसी भी तरह से आप अगर पेशेंट को चार्ज करते हैं, देन यू कम्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और जितनी भी सारी डायग्नोस्टिक, पैथोलॉजी और इमेजिंग सर्विसेज हैं, जो सभी पेशेंट से पैसे लेते हैं उस चीज के लिए, कंसल्टेशन लेते हैं या फीस लेते हैं या प्रोसीजर की फीस लेते हैं, दे आल्सो कम अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। देन आप टेलीमेडिसिन देते हैं, डिजिटल हेल्थ कंसल्टेशन देते हैं, मेडिकल डिवाइसेस लगाते हैं, कोई इम्प्लांट लगाते हैं, तो वो सभी जो हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आएंगी, जहां जहां भी आप उनसे चार्ज करते हैं। लेकिन जहां पे आप जो है चैरिटी करते हैं, फ्री सर्विसेज देते हैं, आप अपना में जो है बैठते हैं वहां पे, कोई उससे फीस चार्ज नहीं करते हैं, देन यू आर नॉट कंसिडर्ड टू बी कम्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो उसमें जो डेफिशिएंसी है, जो नेग्लिजेंसी है, उसमें क्या क्या कवर होता है, उसमें एक चीज कवर होती है कि जो ड्यू केयर, जो आपकी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग जितनी आपकी स्किल होनी चाहिए, उतनी स्किल के अकॉर्डिंग आप उसको केयर नहीं दे पाते हैं या नहीं दी है, या आपने उसमें जो है अनगेली की है, कोई नेग्लिजेंस की है, देन यू आर कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजेंट एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। आपने जो सर्विस देनी थी वो कंप्लीट नहीं दी उसको, आपने उसमें वजह चाहे आप चाहिए थी वो नहीं दी है, देन ऑल्सो यू आर सर आपकी आवाज अंडर, कट रही है। अभी आ रही है? डॉक्टर गरिमा अभी आ रही है? सर बीच में कटती है थोड़ी सी। ओके, चलो। तो आपको पेशेंट को डिजीज के रिगार्डिंग अवेयरनेस करने के लिए जो भी आपने इंफॉर्मेशन या आप मिसलीडिंग प्रैक्टिस करते हैं, जो पेशेंट को चाहिए वो ना दे के कुछ और करते हैं, या एक्सेस में मेडिसिन देते हैं जो उसको चाहिए नहीं होती, या एक्सेस में कोई प्रोसीजर करते हैं जो एज पर हिज और हर डिजीज कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड, देन आल्सो यू आर कंसिडर्ड 2019। तो आपने जो है बिल्कुल एथिकल प्रैक्टिस करनी है, पेशेंट को अच्छे से गाइड करना है, प्रेफरेबली इन रिटर्न, कि आपकी जो डिजीज कंडीशन है वो इस तरह से है और उसके बारे में आपको इस तरह से खाना, आहार विहार, प्रिकॉशंस लेने हैं, और आपकी डिजीज जो है वो याप्य है, साध्य है, असाध्य है, वो सब उसको डिस्क्लोज करना है अच्छे से, कुछ अपने शब्दों के अनुसार, ताकि पेशेंट डरे भी नहीं और उसको पता भी हो अपनी डिजीज कंडीशन का। तो आप बिल्कुल एथिकली आपने उसको गाइड करना है एज पर द एक्ट। फिर कुछ हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम पेशेंट को देते हैं, डिवाइस होती है, जैसे आजकल पंचकर्मा के लिए हम देते हैं, कोई वर्ती दी है, कुछ दिया है, देन वो या फिर सर्जरी में हम, हमारे जो एमएस हैं, शल्य शल्य के वो लोग जो है प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, ड्रग्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, कंज्यूमेबल्स हैं, वो सभी जो हैं वो भी ठीक से एज पर द स्टैंडर्ड वो बने होने चाहिए और पेशेंट को उससे कोई हार्म नहीं होना चाहिए। तो वो भी जिम्मेवारी जो है वो डॉक्टर की बनती है, साथ में जिस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है उसकी भी बनती है। तो फिर आता है मिसलीडिंग मेडिकल एडवर्टीजमेंट्स। ये हम मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दूसरे एक्ट के अंडर भी पढ़ेंगे, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। लेकिन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी जो है मिसलीडिंग मेडिक, किसी को लंबा होने की, कद लंबा होने की कोई दवाई देता है, कोई वजन बढ़ाने की मेडिसिन देता है, कोई वजन कम करने की दवाई देता है, जो यूजली मिसलीडिंग होती है, ऐसा नहीं हमेशा होती है। तो जो इस तरह से एडवर्टीजमेंट अगर हम कहीं पे करते हैं, मास मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे, वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आती हैं। फॉल्स एश्योरेंस देते हैं या गारंटीड रिजल्ट की बात करते हैं हम किसी भी डिजीज में, कि हमारी इस दवाई से इस पर्टिकुलर डिजीज का जो पेशेंट है वो उसको गारंटीड केयर है, श्योर है उसको। तो इस तरह की अगर हम एश्योरेंस देते हैं किसी भी पेशेंट को, देन आल्सो इट कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019।
किसी भी चीज की हम ओवर चार्जिंग करते हैं, जिसकी उसकी फीस होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा करते हैं, या हम पहले से उसको फीस नहीं बताते हैं और बाद में उसके लिए चार्ज करते हैं, हिडन फीस लेते हैं कि हमारा ये भी था, ये भी था, ये भी था, ऐसा करके, देन आल्सो इट कम्स अंडर द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड यू आर लायबल टू बी सूड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। या पेशेंट को उसका जो रिकॉर्ड है वो हम नहीं देते हैं, चाहे उसका एडमिशन का रिकॉर्ड है, चाहे उसका ओपीडी का रिकॉर्ड है, चाहे उसकी प्रिस्क्रिप्शन है, उसकी जो है मेडिकल जो इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट्स हैं, या जो कोर्स वहाँ पे हमारे पास उसका मेडिसिन का चला है, जो जो हमने थेरेपीज उसको दी हैं, उसका मेडिकल रिकॉर्ड जो है पेशेंट मांगता है और हम उसको नहीं देते हैं, देन आल्सो इट इज कंसिडर्ड अंडर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो आपको जो है वो अभी इस एक्ट के अंडर बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। कहीं पे भी पेशेंट है वो जहां से आया है, वो वहां से भी अपनी जो है वो अपनी कंप्लेंट जो है कंसर्न स्टेट में या कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में वहां पे स्टेट फाइल कर सकता है। आप झारखंड में प्रैक्टिस करते हैं, आपके पास पंजाब से पेशेंट चला जाता है और उसको कोई प्रॉब्लम होती है, वो आपके अगेंस्ट कोई केस करना चाहता है, तो वो पंजाब में बैठ के आपको पंजाब का जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जहां से वो बिलोंग करता है वहां पे आपके लिए आपके अगेंस्ट जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये बहुत ज्यादा पेशेंट कंज्यूमर फ्रेंडली इनको बनाया है। तो बाकी ई हियरिंग के थ्रू कोर्ट में प्रेजेंट हो सकता है, वो आप भी हो सकते हैं, तो ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट जो है फाइल कर सकता है। तो इसलिए आपने अपना रिकॉर्ड जो है वो अच्छे से सभी पेशेंट का मेंटेन करके रखना है, ताकि आपके पास अगर ऐसे कोई ऐसे अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए तो आपके पास सेफ्टी के लिए आपके पास सारा आपका रिकॉर्ड हो, जो आप कंसर्न जो अथॉरिटी है कोर्ट है उसके पास दे पाएं। और आप जो है उस जो जो जुर्माना है वो भी बहुत ज्यादा कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ, डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 1 करोड़ तक का जो है जो फाइल कंप्लेंट है वो फाइल कर सकते हैं, 1 करोड़ तक के कंपनसेशन की। और स्टेट में जो है वो 10 करोड़ तक का है, और जो नेशनल में है वो 10 करोड़ से ऊपर है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कोर्ट है वो भी 1 करोड़ तक की कंपनसेशन जो है वो कंज्यूमर को या पेशेंट को दे सकता है। तो आप सोचो कि वो कितना कितना हैवी अमाउंट है जो पेशेंट कई बार डॉक्टर को जो है वो भरना पड़ता है। तो आपको क्या करना है कि आपने अपनी जो ड्यूटी ऑफ केयर है दैट नीड टू बी स्किल्ड रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब हमने पहले समझा कि जितना सा हमारे हमारे पास कैपेबिलिटी है हमारे हेल्थ सेंटर में, और जितना सा हमारे लेवल का एक डॉक्टर को स्किल्ड होना चाहिए, जितना सा उसको नॉलेज होनी चाहिए उतनी सी हम नॉलेज दें, नॉलेज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करें। और जो भी हमने प्रैक्टिस करनी है उसके पास हमारे पास उसका एविडेंस हो, कोई रिसर्च पेपर है, हमारी जो क्लासिकल टेक्स्ट्स हैं वहां पे मेंशन्ड है, या किसी ऑथर ने कुछ लिखा है, या पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, तो हमारी जो प्रैक्टिस है वो एविडेंस बेस्ड हो, या हमारा अपना पास्ट रिकॉर्ड है वो सब हमने पब्लिश किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो है, या हमारी बुक्स में लिखा हमने पढ़ाई की है, तो वो सब जो है वो लेना है। और जब आपने पेशेंट की कोई थेरेपी करनी है, ओपीडी के अंदर पेशेंट आता है तो उसके अंदर आपको कोई कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। कंसेंट के विषय में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी छोटा सा बात करते हैं कि अगर ओपीडी में आता है तो उसकी आपको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई थेरेपी करनी है, उसका कोई प्रोसीजर करना है, आपने कोई शल्यकर्म करना है, आपने बस्ती देनी है, आपने पंचकर्मा का कोई प्रोसीजर करना है, तो उन सब प्रोसीजर में बेटर है कि आप पेशेंट को सारा कुछ बताएं कि आपकी थेरेपी जो है इसलिए की जा रही है, उसमें हम ये चीजें करेंगे, और उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है, उसके जो नुकसान हैं वो ये हो सकते हैं, और उसका फायदा ये होगा। तो पेशेंट को आपने इन्फॉर्म करके, प्रेफरेबली उसकी लैंग्वेज में, प्रेफरेबली उसके हाथ से लिखवा के, उसकी जो कंसेंट है पेशेंट की वो लेनी है कि मैं अपनी कंसेंट देता हूँ इस प्रोसीजर के लिए डॉक्टर को। और कुछ डॉक्टर ने जो है मैंने देखा है कि पहले से ही छपवा के रखे होते हैं कंसेंट फॉर्म, और वहां पे पेशेंट के नीचे साइन करा लेते हैं, एक विटनेस के साइन करा लेते हैं, और एक हमारा जो विटनेस होता है हमारे साथ कोई काम कर रहा होता है उसके साइन करा लेते हैं। वो कोर्ट में मान्य नहीं होती है। हमने जो कंसेंट लेनी है वो बिल्कुल, मतलब ब्लैंकेट कंसेंट नहीं लेनी है। ब्लैंकेट कंसेंट जैसे मैंने बात करी कि छुपवा के रखते हैं कि सभी चीजों के लिए सेम कंसेंट, ऐसा नहीं है। उसको ब्लैंकेट कंसेंट बोलते हैं कि सभी चीजें उसमें कवर आ जाती हैं। आपने डिजीज स्पेसिफिक के लिए जो है वो कंसेंट लेनी है। इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है कि पेशेंट को उसके प्रॉस एंड कॉन्स जो है ट्रीटमेंट के आपने जो है एक्सप्लेन करने हैं, इन्फॉर्म करने हैं, उसके बाद आपने कंसेंट लेनी है। और आपके जो कॉस्ट आएंगे किसी भी थेरेपी के आएंगे, किसी भी मेडिसिन के आएंगे, आपकी कंसल्टेशन क्या होगी, वो सब उस कॉस्ट जो है वो आप पेशेंट को ट्रांसपेरेंटली बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग उससे
चार्ज करेंगे। चार्ज आप कर सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है, लेकिन पहले से पेशेंट को जो है इन्फॉर्म होना चाहिए। बेटर हो कि आपके जो रिसेप्शन है या आपका जो कंसल्टेशन रूम है वहां पे आपकी जो लिस्ट लगी हो, आपके प्रोसीजर जो आप करते हैं कि मैं इस चीज का, या आपके बेड का कितना चार्ज है, आपके रूम का कितना चार्ज है, वार्ड का कितना चार्ज है, प्राइवेट रूम का कितना चार्ज है, वो सब जो है वो आपके क्लियरली रिटन हो, क्लियरली मेंशन हो, पेशेंट उस बारे में पहले से जानता हो, दैट वुड बी बेटर। फिर आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो मैंने बात करी, पेशेंट का नाम है, कौन से वार्ड में एडमिट है, कौन से बेड पे एडमिट है, किस डिजीज से वो सफर हुआ था, कब आया था, कब उसने आपकी डेट ऑफ एडमिशन क्या है, टाइम ऑफ एडमिशन क्या है, उसको आपने डिस्चार्ज कब किया, वो डिस्चार्ज आपने खुद किया या उसने आपकी अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस उसने लिया, अपनी रिक्वेस्ट से गया, वो कंसेंट फॉर्म्स क्या है, डिस्चार्ज समरीज जो है, ट्रीटमेंट समरी जो है, वो सब आपके पास आपने कम से कम भी 3 साल के लिए संभाल के रखनी होती है पेशेंट की। तो आपके पास वो सारा रिटर्न में होना चाहिए। और जो उसका टाइम रिक्वायर्ड है, मेरे ख्याल 3 दिन का है, तो उसमें पेशेंट को आपने, या किसी भी अथॉरिटी को कोई आपसे मांगती है गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो 72 आवर्स के अंदर अंदर आपने वो रिकॉर्ड जो है वो देना होता है। तो कंपनसेशन की हमने बात पहले ही कर ली, ये पहले बहुत कम था, अभी बहुत मतलब ज्यादा कर लिया है। तो इसलिए आपने अपना पूरी डॉक्यूमेंटेशन रखनी है, ड्यूटी ऑफ केयर, इन्फॉर्म कंसेंट, सब कुछ करने के बाद कोई प्रोसीजर जो है वो करना है। और 3 साल के लिए अपने पास आपका रिकॉर्ड जो है वो बोथ ओपीडी एज वेल एज ऑफ आईडी, सॉरी आईपीडी, यू नीड टू बी उसको संभाल के जो है रखना है अपने पास। तो क्यों हमारे पास जो है, क्यों हमारे ऊपर जो है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो इम्प्लीमेंट होता है? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें 3 चीजें मेन हैं। फर्स्ट इज ऑफर, देन इज एक्सेप्टेंस, देन इज द कंसिडरेशन। ऑफर क्या? पेशेंट ने अपने आप को ऑफर किया आपको कि मैं ट्रीटमेंट लेने के लिए आया हूं, और आपने एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं आपको जो है ट्रीटमेंट दूंगा। देन यू टेक फी फ्रॉम हिम और हर, दैट इज कंसिडरेशन। तो ये तीनों पार्ट हैं कॉन्ट्रैक्ट के। तो आपका पेशेंट के साथ, पेशेंट आपके पास आ गया, आपने उसको ट्रीटमेंट दे दी, आपने उससे चार्ज कर लिया, तो आपके आपके पास तीनों चीजें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होगी, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशंस। तो तीनों चीजें जब होगी तो आप सीपीए के अंडर आ गए, और आपके जो कंपनसेशन है डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का और नेशनल लेवल का, वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया। कंज्यूमर जो है, पेशेंट जो है वो आपकी कंप्लेंट कर सकता है कंज्यूमर जो कोर्ट है उनके अंदर, और आपको नेग्लिजेंट सर्विसेज के लिए सू कर सकता है। और यूजली कोर्ट जो है बहुत हैवी अमाउंट डॉक्टर्स के ऊपर लगाते हैं। तो आपने जो है अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल एथिकली करनी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली करनी है, बिल्कुल पेशेंट को इन्फॉर्म करके उसको अवेयर करके करनी है। और अपना सारा रिकॉर्ड जो है, जो भी ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड है, वो आपके पास संभाल के रखना है, और जब जरूरत पड़े ताकि आप उसको यूटिलाइज कर सकें, उसको यूज कर सकें। और आजकल तो ऐसा है कि जो एडवोकेट्स हैं, मैं किसी प्रोफेशन के बारे में गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे फिर भी हैं जो पेशेंट को मिसगाइड करके अपने फायदे के लिए डॉक्टर के अगेंस्ट जो है कंप्लेंट्स करा देते हैं कि जो कंपनसेशन मिलेगा उसमें से बाद में शेयर कर लेंगे, अभी आपको कुछ देने की भी जरूरत नहीं है मेरे को, मैं बाद में ले लूंगा जब कंपनसेशन मिलेगा। ऐसे भी बहुत सारे एडवोकेट्स जो हैं वो हमारी सोसाइटी के अंदर हैं। तो इसलिए आपने अपना जो रिटर्न काम है, जो आपने पेशेंट की ट्रीटमेंट की है, वो सारा जो है वो आपके पास अच्छे से रेडी होना चाहिए। और कोशिश करो कि पेशेंट के साथ आप एम्पैथी से, सिंपैथी से जो है उसके साथ पेश हो, और जो है पेशेंट को अवेयर करो डिजीज के बारे में, वो आपके फेथ में रहे। और जो है आपके पास कॉम्पिटेंट स्टाफ हो, सारे आपकी जो भी आप फैसिलिटी देते हैं, आपके इक्विपमेंट अच्छे से काम करते हो, और आपका हॉस्पिटल में जो हाइजीन है वो सब अच्छे से मेंटेन्ड हो। और पेशेंट का कोई ग्रीवियंस है, उसकी कोई उसका कोई आपके अगेंस्ट या आपके स्टाफ के अगेंस्ट जो है कोई भी उसकी शिकायत है, तो वो टाइमली, बीइंग द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बीइंग द हेड ऑफ द डिस्पेंसरी, बीइंग द हेड ऑफ द हॉस्पिटल, या जो भी आपने वहां पे उस किसी को हायर किया उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, वो टाइमली उस ग्रीवेंस को जो है वो हैंडल करे, और पेशेंट को जो है उसके बारे में समझाए, ताकि वो आगे जो है लिटिगेशन में ना जाए। तो ये हमने बात कर ली सारी नेग्लिजेंस की, नेग्लिजेंस में क्या होता है। तो ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, रीजनेबल केयर हम बात कर चुके हैं,
और ड्यूटी तो हमारी है ही है डिफेंडेंट के प्रति। तो लेकिन इसमें एक चीज सबसे जो आपके फायदे में है कि अगर वो आपके अगेंस्ट नेग्लिजेंस की कोई कंप्लेंट करता है, तो उसके ऊपर ये ऑनर रहेगा कि वो उस चीज को, बर्डन रहेगा कि वो उस चीज को जो है वो प्रूव करे कि आपके आपके पास, आपको नहीं करना है कि मैंने नहीं किया है, बल्कि जो पेशेंट है वो प्रूव करेगा कि डॉक्टर ने नेग्लिजेंस किया है। नेग्लिजेंस किया है तो फिर आपने, अगर वो प्रूव होती है वो चीज, तो आपने उसका डिफेंस देना है। तो डिफेंस में ये हमने पहले ही बात करी थी कि हमारे पास जो है, अगर हम इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है तो हमारे पास जो है वो राइट नहीं रहता कि हम उसको ट्रीटमेंट के लिए लें या ना लें, हमारे हमें उसको लेना ही लेना है। लेकिन अगर हम रूटीन, हमारे पास कोई पेशेंट आता है, इंडिविजुअल हम प्रैक्टिस करते हैं, इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर, देन वी हैव प्रोफेशनल प्रिविलेज। प्रोफेशनल प्रिविलेज क्या है कि हम पेशेंट को एक्सेप्ट करें या ना करें, ये हमारी मर्जी होगी कि हम उसको ट्रीटमेंट देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। इफ वी कंसीडर वी आर नॉट टू ट्रीट द पर्टिकुलर पेशेंट और पर्टिकुलर डिजीज, we may decline to treat the patient or the disease. We may say that we are not going to treat you, आप कहीं और जाके दिखा लीजिए। लेकिन इमरजेंसी में नहीं, रूटीन में जो आया है तो आप, लेकिन अगर आप उसको ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, देन यू कैन टेक द पेशेंट, यू कैन ट्रीट हिम और हर, यू कैन ट्रीट द पर्टिकुलर डिजीज इफ यू वांट। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हैं, किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, किसी डिस्पेंसरी में काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी में काम करते हैं, देन यू हैव नो प्रोफेशनल प्रिविलेज। आपको जो कंसर्न इंस्टीट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो आपके पास आपका प्रोफेशनल प्रिविलेज ने जो है वो नहीं है। और प्रैक्टिसिंग इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, उसमें हम, we are bound to treat the patient in an emergency, we are bound to give a due care, we are bound to manage the treatment at the tertiary or secondary healthcare center if we do not have that particular facility। फिर हमने नेग्लिजेंस की बात की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर भी नेग्लिजेंट होता है और पेशेंट भी होता है। उसने टाइमली जो है ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं किया, टाइमली ट्रीटमेंट को लिया नहीं, टाइमली जो है मेडिसिन से कंप्लायंस उसका नहीं है, वो आप टाइमली आपके पास दिखाने आता नहीं है। लेकिन आपने भी उसको ड्यू, जब आपके पास आया तो आपने भी उसको अच्छे से समझाया नहीं, आपने भी उसको ड्यू केयर नहीं दी, आपने भी उसकी इन्फॉर्म कंसेंट नहीं ली, और आपने भी जो है उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो संभाल के नहीं रखे। तो दोनों की जो है नेग्लिजेंस बनेगी, उसमें दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आपको किसी तरह से कोर्ट गलती मानता है, नेग्लिजेंस मानता है, और पेशेंट को भी जो है उसकी भी नेग्लिजेंस मानता है, तो आप दोनों को जो है उसके एवज में जो भी जुर्माना होगा वो उसका डिवाइड होगा, जितना जितना कोर्ट मानेगा कि कितनी सी पेशेंट की नेग्लिजेंस है। अगर 100% पेशेंट का नेग्लिजेंस होगा तो आपके ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन आपका अगर 90% जो है पेशेंट का, 10% आपका है तो 10% आपको देना होगा। और वाइस वर्सा, अगर 10% पेशेंट का, 90% आपका है तो 90% आपको देना होगा। तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का भी फिनोमिना है। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। लेकिन आपने कोशिश करना है कि आप अपनी सर्विसेज में नेग्लिजेंट ना हो, पेशेंट होता है तो हो। फिर नेग्लिजेंसी में एक चीज और आती है, मेन जो जो आती है, एक्टस रिया एंड मेंस रिया। एक्टस रिया इज कि आपने कोई ऐसा एक्ट किया लेकिन जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से आपसे हो गया, तो दैट इज एक्टस रियास। मेंस रिया इज कि आपने, आपके मन में ही था कि मैंने इस पेशेंट के साथ, वैसे ऐसा कोई डॉक्टर करता नहीं है पर ये लीगल लैंग्वेज में ऐसा है कि मैंने इस पेशेंट को साथ इस तरह से जो है वो ट्रीट करना है कि इसका नुकसान हो जाए। दैट इज मेंसरिया। आपका माइंड जो है वो गिल्टी था। तो मेंसरिया जब जहां पे प्रूव होता है, ऑल्दो इट onus is on the patient to prove that the doctor, the physician, he is or he was suffering from menstruation। तो उसने जानबूझकर ऐसा काम किया है। तो पेशेंट अगर ऐसा कुछ जो है वो प्रूव करता है और वो ऐसा प्रूव हो जाता है, तो उसको में जो आपको क्रिमिनल जो लायबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको सू करेगा, कोर्ट ट्राई करेगा, और उसके अकॉर्डिंग जो है डॉक्टर को जो है वो सजा देगा, जिसमें आपने जो है वो इंटेंशनली कोई नुकसान पेशेंट का किया है, रेकलेसनेस किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर किया है, मेंटल इंडिफरेंस किया है टू जो उसको पेशेंट को होने वाला था,
और आपने जो है उसको नहीं कंसिडर किया, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाली है उसको आपने नहीं कंसिडर किया, तो जो है आपको उसमें मेंसरिया में कंसिडर किया जाएगा, और मेंसरिया दैट इज मोर हार्मफुल फॉर द डॉक्टर। तो आपके पास अगर आपको इस तरह से कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आपके पास साथ हो जाती है और कोई पेशेंट इस तरह से आपको सू कर देता है, तो आपके पास बहुत सारे डिफेंसेस, एक तो आपने आपके पास आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिटर्न में होंगे, वो सारा रिकॉर्ड पेशेंट का होगा, उसकी ट्रीटमेंट क्या किया, कब उसको डिस्चार्ज किया, जो हमने डिस्कस किया। दूसरी बात कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, जिसकी हमने बात करी कि पेशेंट भी हमारे पास टाइम से नहीं आया, इसने मेडिसिन टाइम से नहीं ली, इसको हमने एडमिशन के लिए बोला था ये एडमिट नहीं हुआ, इसको हमने थेरेपी कराने के लिए बोला था इसने मना कर दिया। वो सब कुछ आप अपनी शीट पे लिख के रखें, जो पेशेंट की शीट है कि पेशेंट वर एडवाइज्ड फॉर द उत्तरबस्ती बट ही हैज नॉट गिवन हिज कंसेंट फॉर द सेम। वी एडवाइज पेशेंट फॉर द वमन क्रिया फॉर द पंचकर्मा बट ही हैज रिफ्यूज्ड। तो आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है उसके ऊपर वो चीज लिखी हो, ताकि पेशेंट अगर कभी अनफॉर्चुनेटली कहीं जाता है वो स्लिप लेके आपकी प्रिस्क्रिप्शन, तो आप जब वो देगा तो कोर्ट को भी पता होगा कि ये खुद ही इसने डॉक्टर ने एडवाइस किया था और इन्होंने इसको लिया नहीं, या आपने कोई इन्वेस्टिगेशन एडवाइस किया और उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई है, आपने अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया, आपने कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन एडवाइस किया है लेकिन पेशेंट ने उसको नहीं कराया था, देन नेग्लिजेंस इज द पेशेंट नॉट द डॉक्टर। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं दे आर बाउंड टू हैपन, कोई इंजरी जो है अगर जैसे हमारे पास व्यापद हैं, बस्ती के व्यापद हैं, या वमन के व्यापद हैं, या विरेचन के व्यापद हैं, या किसी और प्रोसीजर के शल्यकर्म के किसी के व्यापद हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड है था, तो उस तरह के केस में जो है वो नहीं होगा, आपको जो है नेग्लिजेंस नहीं माने जाएंगे, वो आपके पास डिफेंस होगा कि ये। और राइट टू डबल जेपार्डी ये है कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको डबल जो है वो सजा नहीं मिल सकती है, किसी भी ऑफेंस के लिए आपको सिर्फ एक ही बार उसको जो है वो। लेकिन हाँ ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति डिपार्टमेंट में किसी में काम करता है तो डिपार्टमेंट अलग से एक्शन ले सकता है, लेकिन कोर्ट में सिर्फ एक ही बार आपको ट्राई किया जा सकता है। देन इज द वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी इज द कि आपने अपने अंडर कोई स्टाफ रखा है, उसने कोई नेग्लिजेंस की है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। एक्ट ऑफ एन एजेंट इज एन एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, कि जो उसने किया है वो ऐसा माना जाता है कि वो आपने ही किया, तो आपने अपने अंडर जो स्टाफ रखना है वो क्वालिफाइड ट्रेंड होना चाहिए, जो प्रोसीजर के लिए आप उसको हिदायत देते हैं गाइड करते हैं वो उसको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अनस्किल्ड वर्कर है उसको आप एम्प्लॉय करें और वो आपका जो है वो नुकसान कराए। लेकिन ऐसा है कि उसमें लायबिलिटी जो है एजेंट की भी होगी और प्रिंसिपल की भी दोनों के ऊपर बराबर होगी, लेकिन आपको भी माना जाएगा। आप ऐसा कह के फारिग नहीं हो सकते हैं कि ये काम मैंने नहीं किया, मैं वहां पे नहीं था, मेरा पीछे से स्टाफ था, उसने अपने आप से प्रोसीजर कर दिया, ये उसकी गलती से हुआ, ऐसा नहीं होगा, आपको उसके लिए नेग्लिजेंस माना जाएगा। तो सीपीए का फायदा क्या है कि इट एनहांसेस ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज डॉक्टर need to make the patient aware, need to tell him or her about the costs, need to tell him or her about the disease progression, और अकाउंटेबिलिटी उसकी जिम्मेवारी रहेगी कि वो पेशेंट को सब चीजें बताए और पेशेंट के राइट्स को जो है जो कवर करता है। लेकिन इससे जो मेडिको लीगल एक्सपोजर है वो डॉक्टर्स का बढ़ गया है, और उससे नुकसान भी अल्टीमेटली पब्लिक का होता है, क्योंकि डॉक्टर फिर उसके अकॉर्डिंगली चार्ज करते हैं ज्यादा, कि अगर हमें किसी पेशेंट ने सू कर दिया तो हम जो खर्चा है, जो हमारे ऊपर कंपनसेशन है वो हम कहाँ से भरेंगे। तो इसका ये नुकसान होता है कि जो डॉक्टर है उसका चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन उसका ये फायदा हुआ कि पेशेंट को जो है वो डॉक्टर अच्छे से गाइड करता है, उसको अच्छे से बताता है और उसको हिडन कॉस्ट से वो बचा रहता है, और क्वालिटी केयर देता है, क्योंकि उसको जो है वो स्किल्ड वर्कर एम्प्लॉय करने होते हैं। और एक ट्रस्टिंग डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो है वो बाय क्लियर डॉक्यूमेंटेशन और साथ में उसकी जो हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट रहते हैं, तो वो सबसे अच्छा इसमें बेस्ट प्रोटेक्शन है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट कि किसी भी प्रोसीजर के बारे में जो हमने बात करी वो सब आपके पास रखना है, देन इट इज द बेस्ट प्रोटेक्टिव मेजर फॉर द डॉक्टर। तो ये हमने डिस्कस किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट।
आगे हम करेंगे ड्रग एंड मैजिक की रेमडीज ऑब्जेक्शनबल एडवर्टीजमेंट एक्ट। ये बहुत छोटा सा एक्ट है, 1954 में आया था। तो इसमें डिजीज की एक लिस्ट है, 54 उसमें डिजीजेज हैं। ये ऐसा है कि इन डिजीज के बारे में आपने, ये किसी भी नाम से जाने जाए, है ना, डिजीज एंड एलिमेंट्स बाय वट एवर नेम डिस्क्राइब, तो आपने कभी भी जो है किसी भी प्रिंट मीडिया और मास मीडिया में कि आप इन चीजों की क्योर करते हैं, इनको ट्रीट कर सकते हैं आप, कि यहाँ पे ये ट्रीटमेंट, इस चीज की ट्रीटमेंट मिलती है, ऐसा आप लिख सकते हैं। लेकिन क्योर वर्ड जो है वो आपने नहीं करना है कि हमारे यहाँ से जो है हमारी मेडिसिन से ओबेसिटी क्योर होती है, या पैरालिसिस क्योर होता है, या हमारे पास जो है ट्यूबरकुलोसिस क्योर होती है, या हम जो है एपिलेप्सी क्योर करते हैं अपनी पर्टिकुलर मेडिसिन से, या हम ग्लूकोमा क्योर। तो ये लिस्ट है 54 डिजीजेस की। तो ये डिजीजेज जो हैं, ये सेक्शन 3 के अंदर आपको प्रोहिबिशन है कि आप इनके जो है ट्रीटमेंट का और इनके क्योर का जो है वो दावा नहीं कर सकते हैं। तो ये मतलब हमारे साथ यूजली होता है कि जो आयुर्वेदिक स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, डॉक्टर्स के साथ ये कम होता है कि वो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स बनाती हैं पेटेंट एंड प्रोप्रिएटरी, और क्लेम लिखती हैं कि हमारे से जो है वो जो है मोटापा कम करें 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, इस दवाई से शर्तिया इलाज होगा मोटापे का। तो वो सब दे कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द ड्रग एंड मैजिक रेमडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954। व्हाट इट डज, इट प्रिवेंट फॉल्स मिसलीडिंग और मैजिकल क्योर क्लेम्स। लेकिन फिर भी समाज में जो है बहुत सारे लोग जो हैं ये मैजिकल क्योर क्लेम्स करते हैं, और क्योंकि हमारी इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं कभी कमजोर रह जाती है, तो एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। बहुत सारी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आज भी अखबारों में, प्रिंट प्रिंट मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे वो सब आती हैं। तो ये सब जो है वो, ये एक्ट लेकिन उनको रेगुलेट करता है, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो उनको सू कर सकती हैं। और इससे जो पेशेंट है, जो कंज्यूमर है, जो सिटीजन है, दैट इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ द फार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ऑफ द डॉक्टर्स। एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम द सेल्फ मेडिकेशन, कि हाँ जी इससे तो मोटापा कम हो जाएगा और ये लेनी शुरू कर दो। और जो है उसकी जो ट्रीटमेंट है प्रॉपर, ट्यूमर के बारे में, कोई कैंसर के बारे में ट्रीट करता है कि श्योरली कैंसर उससे ठीक हो जाएगा, ट्यूमर ठीक हो जाएगा, तो उसकी जो टाइमली मिटिगेशन होनी है, टाइमली ट्रीटमेंट होना है, टाइमली डायग्नोस होकर टाइमली ट्रीटमेंट होनी है, वो उसको नहीं मिलेगी। तो ये अगर हम वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अलाउ होगी तो डिलेड जो है ट्रीटमेंट उसकी होगी। और वो आपको पता है कि कैंसर तो टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए तो वो ट्रीट हो जाता है, बाद में तो फिर मेटास्टेसिस होती है, तो सब कुछ खराब होता जाता है, तो उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर ये एक्ट ना हो तो इस तरह की डिलेड ट्रीटमेंट भी होंगे। तो इसलिए बीइंग डॉक्टर ये हमारा भी काम है कि जहां जहां पे भी कहीं एज इन वायलेशन ऑफ द ड्रग मैजिक रेमडीज एक्ट जो है, कहीं भी कोई एडवर्टीजमेंट आती है किसी प्रिंट मीडिया में या सोशल मीडिया, तो हम वहां पे जो कंसर्न, वेदर इट इज डायरेक्टर आयुर्वेदा और लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफ द आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, तो उनको इन्फॉर्म करें कि यहाँ पे इस तरह की इंफॉर्मेशन आई है, या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में हम सीधी अपनी भेज सकते हैं कि ये जो है पर्टिकुलर डिजीज के बारे में ड्रग एंड मैजिक रेमडीज एक्ट में लिखा है, लेकिन ये फलाना फलाना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है इसका क्लेम करती है, तो इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो उनके अगेंस्ट एक्शन जो होगा, इसमें क्या क्या है, कोई मंत्र देता है, कोई यंत्र देता है, कोई कोई ताबीज देता है, कोई रिचुअल क्लेम करता है, कोई सुपर नेचुरल, तो मायरक्कल आयुर्वेदिक मेडिसिन देता है कि ओबेसिटी ठीक करो, कैंसर ठीक करो, टीबी ठीक करो, और सेक्सुअल इंपोर्टेंस ठीक करो, इनफर्टिलिटी, फीमेल मेल इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर ठीक करो। तो वो सब जो है, ये सब एडवर्टीजमेंट जो है वो ड्रग एंड मैजिक रेमडीज एक्ट के अंडर आती हैं। आपने इस तरह की, आपने आप जो भी ट्रीटमेंट देते हैं आप देते रहिए, उसके बारे में इस तरह की कोई भी एडवर्टीजमेंट आपने किसी भी तरह के प्रिंट या सोशल मीडिया पे नहीं देनी है कि हमारे यहाँ पे इन चीज़ों का क्योर करते हैं। इनका जो है शर्तीय इलाज होता है, 15 दिन में ठीक होता है, 20 दिन में ठीक होता है, ऐसा कुछ भी आपने इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है। और इसमें एक 1 साल तक की जो है वो सजा है, और साथ में फाइन भी है। तो आपने इस तरह की कोई भी जो है एडवर्टीजमेंट आपकी प्रैक्टिस को लेके कभी भी नहीं करनी है। इन चीजों में स्पेशली अपेंडिसाइटिस है, ब्लाइंडनेस है, ब्लड प्रेशर है, कैटरेक्ट है, डीफनेस है, डायबिटीज, ये तो इन सब के बारे में आपने जो है वो किसी भी तरह क्लेम कभी भी नहीं करना है।
आप जो भी अपनी आप जी आप जो भी अपनी ट्रीटमेंट देते हैं टेक्सचुअल बेसिस, आप हमारी जो संहिताओं में लिखा है या हमारी जो बुक्स में लिखा है या किसी रिसर्च जर्नल में लिखा है, या आप पेशेंट को उनके डिजीज के प्रति एजुकेट करते हैं, वो कर सकते हैं। और जो जो भी आप ट्रीटमेंट दें वो दे सकते हैं, लेकिन बस आपने जो है वो क्लेम किसी भी डिजीज को क्योर करने का नहीं करना है। ये थोड़ा सा कुछ मैंने एग्जांपल दी हैं जो कि आप किस तरह से उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं पेशेंट को, अगर आपने उसको करना है। आयुर्वेदिक अप्रोच टू जॉइंट केयर यूजिंग क्लासिकल फॉर्मुलेशंस, है ना। आयुर्वेदिक अप्रोच टू क्योर शब्द जो आपने उसमें इस्तेमाल नहीं लिखना है। होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक डिजीज या मेटाबॉलिक हेल्थ थ्रू आयुर्वेदा। होलिस्टिक मैनेजमेंट टू क्योर मेटाबॉलिक, ऐसा नहीं होगा, है ना। पंचकर्मा फॉर डिटॉक्सिफिकेशन अंडर सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड वैद्य, ये आप सब कुछ कर सकते हैं। इसमें आपने कहीं भी क्योर शब्द ये क्लेम नहीं लिखा है कि जो है ग्रांटेड डिटॉक्सिफिकेशन विद पंचकर्मा अंडर सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड वैद्य, ऐसा नहीं लिखना आपने। तो दैट कम्स अंडर द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954। तो ये आपने सारा जो है काम करना है। अवॉइड एग्जेजरेटेड अनसाइंटिफिक और सेंसेशनल स्टेटमेंट्स। प्रमोट आयुर्वेदा विद डिग्निटी एंड ऑथेंटिसिटी, जो भी ऑथेंटिक है उसको प्रमोट कीजिए, जो ट्रीटमेंट करने के काबिल है उसके बारे में लिखिए, क्योर शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। और जो है सभी जो आपकी कम्युनिकेशंस हैं वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग और साइंटिफिक जो एविडेंस है, जो रिसर्च जर्नल्स हैं उनके साथ जो है अलाइन होनी चाहिए। और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट किसी भी तरह से नहीं देनी है। और जो भी एनसीएसएम ने, सीसीएम ने या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो भी हमें गाइडलाइंस दी हैं उनको फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग ही पेशेंट को हमने अवेयर करना है, ट्रीट करना है। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। देन आता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। तो हमने पीछे 3-4 एक्ट जो हैं किए। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 1945 है, जिसमें जो मेन जो रोल है वो रूल्स 1945 का है। तो इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डिफाइन करता है कि क्लासिकल ड्रग क्या होगी और पेटेंट ड्रग क्या होगी, पेटेंट प्रोप्रिएटरी क्या होगी। तो जो भी क्लासिकल, जो भी हमारी बुक्स में लिखा है, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट में लिखा है, दैट इज द क्लासिकल ड्रग। Ayurveda Siddha Unani drug includes all medical intent for internal external use, for or in the diagnosis, treatment, mitigation, prevention of disease, exclusively in accordance with the formula described in the authoritative books। जो जो फॉर्मूला हमारी चर्क में लिखा है, उसमें बुक्स की लिस्ट दी है शेड्यूल 1 में। तो उन बुक्स में जो जो लिखा है फर्स्ट शेड्यूल में, उनमें जो फॉर्मुलेशन दी है वो सब जो है वो क्लासिकल ड्रग में आ गई। इसमें डिफाइन करने का इसलिए ऐसा है कि जो क्लासिकल ड्रग के फॉर्मुलेशन है वो विदाउट एनी ट्रायल उनको जो है किया जा सकता है, जिसमें शेड्यूल E1 उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें पॉइजनस सब्सटेंसेस आते हैं। तो उसमें क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर क्लासिकल ड्रग में है तो उसको जो है विदाउट क्लिनिकल ट्रायल उसको फॉर्मुलेशन को कंसर्न स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से पास करवाया जा सकता है। इसलिए इसको डिफाइन किया है, क्लासिकल ड्रग्स को और पेटेंट एंड प्रोप्रिएटरी मेडिसिन को। अब आती है पेटेंट एंड प्रोप्रिएटरी, दैट इज द फॉर्मुलेशन प्रिपेयर्ड विद इनोवेशन बट बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक प्रिंसिपल। जो हमारी टेक्स्ट में जो हमारी हर्ब्स लिखी हैं या मिनरल लिखी हैं, रस औषधियां लिखी हैं या कास्ट औषधियां लिखी हैं, उनकी जो इंडिकेशन लिखी है कि जो है वासा का काम कास में होगा। तो कास में अगर हम कोई फॉर्मुलेशन बनाते हैं, उसमें बनपशा लगाते हैं, उसमें हम जो है वासा लगाते हैं, उसमें कंटकरी छोटी लेते हैं, बड़ी लेते हैं, हृतकी लेते हैं, और हम एक अलग से अपना फॉर्मुलेशन बनाते हैं, तो उसमें सभी जो इंडिकेशन होंगी वो हमारी क्लासिक्स में दी हुई हैं कि इसको कास में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ वहाँ पे अगर 50 ग्राम लिखा और हम 40 ग्राम लेना चाहते हैं कोई चीज़, तो हम 40 ग्राम ले सकते हैं। और उसके साथ एक फॉर्मुलेशन डिवाइस करके उसको कंसर्न स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से पास करवा के उसको जो है वो पेटेंट और प्रोप्रिएटरी मेडिसिन पास करा के पेशेंट को दे सकते हैं। और इसमें जो आपके जानने के लिए जो जरूरी बात है, ये सारी तो तकरीबन तकरीबन जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के काम में आती हैं, लेकिन आपने जो है वो आप कोई भी मेडिसिन अगर आप बनाना चाहते हैं किसी भी तरह की और अपने पेशेंट को देना चाहते हैं, तो वो उसके लिए आपको किसी भी तरह की लाइसेंसिंग की, चाहे क्लासिकल बनाना चाहते हैं या पेटेंट एंड प्रोप्रिएटरी बनाना चाहते हैं, आपको किसी भी फॉर्मुलेशन को किसी भी अथॉरिटी से पाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपने जो विशेष ध्यान रखना है वो रखना है एनडीपीएस के अंडर जो आती हैं, जैसे कि भांग आती है, आइफेन आती है, या किसी
किसी चीज में अल्कोहल का कंटेंट जो है वो 12% से ज्यादा होता है, तो वहां पे जो है आपने ध्यान रखना है कि आपको एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है आपको कंसर्न जो आपका स्टेट का डायरेक्टर आयुर्वेदा है या लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उनसे एनडीपीएस के अंडर ऑथराइजेशन लेनी होती है कि आप ये दवाइयां बनाएंगे और इसमें आप इतना इतना आपके पास स्टॉक रहेगा, और आपने वो मेडिसिन बनाई, बनाने के बाद आपको रजिस्टर लगाना होगा कि वो कितनी दवाई आपके पास बनी, किस किस पेशेंट को दी, किस डिजीज के लिए दी, कितनी मात्रा में दी, कितनी आपके पास बनी थी, कितनी आपके पास बची है, वो जो है क्वार्टरली आपको रिपोर्ट जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देनी होती है। और जो जो भी इंस्पेक्टर आएगा उसके लिए आपने खुला रखना होता है, वो कभी भी आपके पास आके चेक कर सकता है कि आपने कितनी मेडिसिन बनाई थी, किस किस को आपने दे दी, कितनी आपकी यूटिलाइज होगी और कितनी आपके पास बची है। तो ये ध्यान आपने रखना है जब आप मेडिसिन बनाएंगे जो आपके पास भंगा के, आईफेन के, या कहीं पे अल्कोहल का कंटेंट 12% से ज्यादा है, अगर वो सेल्फ जो जनरेटेड अल्कोहल है, अगर इस तरह का आप बनाते हैं तो उस चीज का आपने विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें बाकी तो जीएमपी स्टैंडर्ड्स हैं, रॉ मटेरियल है, लेबलिंग की एक बात करेंगे हम, वो आपके लिए बहुत जरूरी है कि एक मिनट, ये लेबलिंग जो आप रूटीनली प्रैक्टिस करते हैं और आपके पास बहुत सारी दवाइयां आप बाजार से भी लेते होंगे और कुछ कुछ दवाइयां आप खुद भी बनाते होंगे, लेकिन जो बाजार से मेडिसिन आपने लेनी है उसकी लेबलिंग की गाइडलाइंस हैं। लेबलिंग की जो कंपनी बनाएगी उसको लेबलिंग पे जितने भी इंग्रेडिएंट उन्होंने बनाए हैं उसमें डाले हैं उन सब की लिस्ट देनी होगी, उसका बॉटनिकल नाम देना होगा और उसका अमाउंट देना होगा या शेयर देना होगा कि इट इज 1/4, इट इज 1/12, इट इज 1/16, जितने जितनी भी उसकी मात्रा डाली है। और अगर उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, जो लगता है कि वो जो बाहर पैम्फलेट उसने जो स्टिकर लगाया है उस पर नहीं आएगी, तो उसका एक जो बना के डॉक्यूमेंट वो सारा उसके जो पैकेट होगा सिंगल, उसके अंदर डालना होगा कि उसके ये इंग्रेडिएंट्स है, ये उनके बॉटनिकल नेम है, ये उनका अमाउंट है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। दिस इज द गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 161 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। तो जहां पे लेकिन शेड्यूल E1 की ड्रग है, शेड्यूल E1 मैं आपको दिखाता हूं, ये दिस इज शेड्यूल E1। इसमें क्या क्या आता है, इसमें वो है भंग है, सीड के इलाज जो सीड नहीं आएंगे, दंती है, पूरा है, गुंजा के सीड है, जेल है, तो ये सारे जो हैं उसके अंदर आते हैं। तो आपने जो है इन सब का ध्यान रखना है कि अगर ये किसी दवाई में बने हैं तो कोशिश करें कि उसके पीछे लिखा हो कि ये शेड्यूल E1 ड्रग है और इसको जो है अंडर सुपरविजन ऑफ द वैद्य लेना है। तो ये सब आपने ध्यान रखना है। एक एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि जितनी भी क्लासिकल मेडिसिन हैं, अगर आप कोई फार्मेसी चलाते हैं तो उनके आगे जैसे पहले आता था सोना चांदी च्यवनप्राश, या आपने किसी भी नाम पीछे लगा दिया च्यवनप्राश विशेष, च्यवनप्राश आरोग्य, आरोग्य च्यवनप्राश, या आरोग्य आरोग्यवर्धिनी बटी, तो किसी भी जो क्लासिकल आइटम है उसके नाम के आगे या नाम के पीछे कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी डॉक्टर कोई नाम नहीं लगा सकता है, उसको सिर्फ उसी क्लासिकल नाम से वो जो है उसको बनाना होगा और मार्केट में देना होगा। लेकिन जहां पे कोई स्पेसिफिक किसी फॉर्मुलेशन का नाम नहीं है, जैसे चर्क में बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेशन है जो फॉर्मुलेशन दी है लेकिन उसका नाम नहीं दिया है, तो वहां वहां पे जो है वो आप जो उसको किसी भी नाम दे सकते हैं, किसी भी नाम से उसको, या उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है उसके नाम से उस कंपोजिशन को बना सकते हैं, फॉर्मुलेशन को बना सकते हैं, ये आपको राइट है। और जो क्लासिकल ड्रग है जिसकी हमने डिफाइन किया कि अथॉरिटेटिव बुक्स में जो है वो डिफाइन है वो फॉर्मुलेशन, लेकिन कोई सिंगल प्लांट इंग्रेडिएंट से कुछ बनाना चाहता है,
जैसे त्रिफला के 3 इंग्रेडिएंट है, लेकिन आमलकी के नाम से कुछ बनाना चाहता है जो बुक्स में लिखा नहीं है कुछ भी। आमलकी, जैसे आंवला की कैंडी। आंवला एक क्लासिकल ड्रग है जो हमारी क्लासिक्स में डिफाइंड है, लेकिन उसका जो इस तरह से कैंडी के नाम से कोई भी क्लासिकल फॉर्मुलेशन डिफाइन नहीं है। तो आंवला की कोई भी कैंडी बना सकता है, या आंवला का कोई भी जूस है वो पेटेंट प्रोप्रिएटरी बना सकता है। इस तरह से जो है उसमें कोई भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको मना नहीं किया है। ये सभी फॉर्म्स हैं जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा यूज़ के नहीं है, कि किस फॉर्म ने आपने अप्लाई करना है ड्रग्स बनाने के लिए जब आपने लाइसेंसिंग लेनी है, और किस फॉर्म में जो है बस लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगा। एक लोन लाइसेंस का हमारे पास कंसेप्ट है, शायद आपने पढ़ा हो, कि किसी के पास कोई फार्मेसी है, कोई और व्यक्ति जो है वो अपनी फॉर्मुलेशंस बनाना चाहता है, लेकिन उसके पास उस तरह की मशीनरी इक्विपमेंट बिल्डिंग नहीं है। तो वो क्या करता है कि जिसकी फार्मेसी होती है उसके साथ एक एमओयू करता है। एमओयू करने के बाद जो है, ऐसा नहीं कि एमओयू किया और वो वहां पे दवाइयां बनानी शुरू नहीं, वो कंसर्न स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी की अप्रूवल लेगा फॉर्म 25E में, कि मैं यहाँ पे ये बनाना चाहता हूँ तो मेरे को एक लोन लाइसेंस दिया जाए। जो ओरिजिनल लाइसेंस है उसका जो टाइम लिमिट है वो 5 साल है, और लोन लाइसेंस भी जब तक उस फार्मेसी का लाइसेंस चलेगा तब तक वो भी इम्प्लीमेंटेड रहेगा, वैलिड रहेगा। जैसे किसी फार्मेसी ने लाइसेंस लिया, 1 साल बाद कोई और व्यक्ति उसके पास आया कि मैंने आपके यहाँ पे बनानी है, तो उसका 4 साल का बचा था तो लोन लाइसेंस भी 4 साल का होगा। 2 साल बाद आएगा तो लोन लाइसेंस 3 साल के लिए वैलिड हुआ। तो जब तक उसका ओरिजिनल लाइसेंस होगा तब तक ही लोन लाइसेंस होगा। ये ज़्यादा हमारा कंसिडरेशन का नहीं है। एक टेक्निकल स्टाफ, जो भी फार्मेसी होगी उसको नीड्स, ही और शी, द कंपनी नीड्स टू एम्प्लॉय द एटलीस्ट वन पर्सन, as one who is technically sound, who is technically qualified and full-time employee of the company, and who possesses the qualification, namely या तो उसके पास BMS की डिग्री हो, या वो फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल वो ग्रेजुएट हो, उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या जो है वैद हकीम जो पुराने वाले थे रजिस्टर्ड लेकिन होना चाहिए, और उसके पास जो है वो 4 साल का एक्सपीरियंस हो, या डी फार्मेसी हो आयुर्वेद का वैद और उसके पास 8 साल का एक्सपीरियंस हो मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसको कंपनीज जो हैं एज टेक्निकल पर्सन एटलीस्ट वन उनको चाहिए, उससे ज्यादा भी वो कर सकती हैं। हाँ, क्लासिकल ड्रग्स जो हैं ऐसे बना सकते हैं, लेकिन जो क्लासिकल ड्रग्स किसी न्यू इंडिकेशन के लिए देनी होगी, आरोग्यवर्धनी हम जो है वो त्वक विकार में अगर देते हैं, अगर हमारी टेक्स्ट में लिखा है तो ठीक है, लेकिन आरोग्यवर्धनी को अगर हम देना चाहते हैं कि हेयर ग्रोथ के लिए, कि इससे बालों का ग्रोथ होगी जिसके पास जो है, तो उसके लिए हमें जो है प्रूफ ऑफ इफेक्टिवनेस देना होगा कि आरोग्यवर्धनी खाने से बालों की ग्रोथ बढ़ती है, अगर उस इंडिकेशन के लिए उसको यूज करना है। जो क्लासिकल में इंडिकेशन दिए हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन नई इंडिकेशन के लिए अगर उसको बनाना है तो उसके लिए आपको क्लिनिकल ट्रायल करना होगा, और प्रूफ ऑफ इफेक्टिवनेस जो है वो कंसर्न स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देना होगा। इसी तरह से ये भी बहुत ज्यादा वो नहीं है कि जो एक्सिपिएंट्स डालते हैं वो भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी उसके अंदर डाल दिया, प्रिजर्वेटिव डाल दिया, एंटीऑक्सीडेंट डाल दिया, फ्लेवरिंग एजेंट डाल दिया, चिलेटिंग एजेंट डाल दिया, कुछ भी उसके अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाल सकती है, ऐसा नहीं है। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग उनको डालना होगा। ये हमारा शेड्यूल E1 हमने डिस्कस कर लिया था, ये ज्यादा रोल नहीं है। ये सेल्फ लाइफ, ये बहुत जरूरी है। आपके पास बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ड्रग सेक्शन ने सेल्फ लाइफ के लिए नोटिफिकेशन निकाला है कि किस किस ड्रग डोजेज फॉर्म की कितनी सी जो है वो शेल्फ लाइफ होगी। जैसे आपके पास अंजन है, जो आपके पास कास्ट औषधि सीधे बन के आया है, या कोई अर्क है या नेत्र बिंदु है, तो उसकी जो है शेल्फ लाइफ जो है वो 1 साल है। अंजन है जिस औषधि भी डली है, रस औषधि भी डली है, कोई चूर्ण है, क्वाथ चूर्ण है, लेप, शेल्फ लाइफ है वो 2 साल है। ये आप ध्यान रखिए कि नेत्र बिंदु की जो
बिंदु की जो है वो 2 साल है। कोई अंजन है जो सिर्फ रस औषधि से बना है, अवलेह है, खांड है, पाक है, गुड़ है, गुटिका वटी है, जिसमें काष्ठ औषधियों का उपयोग हुआ है, तो उसकी जो वैलिडिटी है, उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 3 साल। तो आप जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देखना है कि कहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो ओवर एग्जेजरेटेड क्लेम तो नहीं कर रही है कि उसका जो अंजन है रस औषधि से बना है वो 10 साल तक चलेगा। उसका जो है अंजन कास्ट औषधि से पला है, उसकी वैलिडिटी 5 साल है। उसका जो नेत्र बिंदु है वो 2 साल है। तो इस तरह से चीजें आपने उसके जो लेवल रहता है उस पे ये चीज, इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना कि जो उनकी शेल्फ लाइफ है और जो लिखी है वो सेम है, कहीं उसको एग्जेजरेट तो नहीं किया गया है। ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये स्लाइड में दे दूंगा तो आप देख सकते हैं। ये मैंने बता दिया था कि आप अपने पेशेंट को कोई भी दवाई बना के विदाउट एनी जो है लाइसेंस उसको दे सकते हैं और प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और खिला सकते हैं। लेकिन हाँ, आप एक कमर्शियल फार्मेसी जो है विदाउट ड्रग लाइसेंस नहीं चला सकते और बल्क में जो है मेडिसिन की सप्लाई नहीं कर सकते विदाउट एनी, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है। ये एक्ट के अंदर ही प्रोविजन है कि जो मिस ब्रांडेड है, जिनका जिनमें डला कुछ और है इंग्रेडिएंट और लिखा कुछ और है, उनकी क्वांटिटी कुछ और है, डली कुछ और है, अडल्ट्रेटेड है, उसमें कोई एलोपैथिक जो है वो चीज डाली गई है, स्पूरियस है ना, तो जो है मिसलेबल्ड इंग्रेडिएंट है वो स्पूरियस है, और अडल्ट्रेटेड है उसमें कुछ और मिक्स किया है, एलोपैथिक ड्रग है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, वो सब जो है वो डली हैं, तो उसकी भी जो है सजा है हमको। इन चीजों के भी आपने आपकी कोई भी मेडिसिन जो है आपको शक है, उसको कंसर्न्ड स्टेट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में टेस्ट करा सकते हैं। उसकी एक फीस होती है, वो फीस भरने के बाद आप उसको टेस्ट करा सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें इंग्रेडिएंट हैं या नहीं है, या उसमें कोई जो है टॉक्सिक सब्सटेंस या कोई एलोपैथी ड्रग तो नहीं है। ये लेबलिंग हमने डिस्कस कर लिया था। जो है अमृत महाद्राक्षा सब है, तो उनमें अल्कोहल की उसमें एनडीपीएस के अंडर जो है वो रहती है उसका इंग्रेडिएंट्स। तो उसका पैकिंग साइज कितना होगा, जैसे कर्पूर आसव है, मरगमंद आसव है, अहिफेन आसव है, उसकी सिर्फ 15 ml की 450 ml की कर लेते हैं, 200 ml की कर लेते हैं, तो इसकी मैक्सिमम साइज जो है वो 15 ml होगा। इसी तरह से मृत संजीवनी सुरा है, जिसमें 16% जो है वो मैक्सिमम कंटेंट रहता है, तो उसकी 30 ml हो सकती है। और इसके आपको मृत संजीवनी सुरा आ गई या महाद्राक्षा सब आ गया, वहां पे जो कंसर्न जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी उसको एक्साइज एंड टैक्सेशन की अप्रूवल भी साथ के साथ लेनी होगी। उसने जो फॉर्मुलेशन है वो तो पास करवानी है, लेकिन उसने साथ में साथ एक्साइज एंड टैक्सेशन से भी अप्रूवल लेनी है। तो ये सब चीजें आपने ध्यान रखनी है, उसके अकॉर्डिंग अपने पेशेंट को ट्रीट करना है। तो ये उसका कंक्लूजन है। ये सब हमने पढ़ लिया है पहले, और फिर शल्य की बात हम करते हैं। गरिमा, टाइम है ना अभी? जी सर। शल्य की हम बात करते हैं। जैसे सर्जरीज आयुर्वेद में कौन कौन सी, बहुत सारे स्टेट के स्पेशली बोर्ड में ये क्वेरीज आती हैं कि कौन कौन सी सर्जरीज हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने लायक है कि जो कंसर्न जो है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो लोग ही सर्जरी करेंगे। इसमें 56 आई थिंक सर्जरीज की लिस्ट है जो डॉक्टर्स कर सकते हैं। जैसे डिब्राइडमेंट है, पेरिनल एब्सेस की उसको जो निकालना है ड्रेनेज करना है, ईयर लोब रिपेयर करना है, वो ये सब लिस्ट है। ये 37 ये है, और ये भी मैं शेयर कर दूंगा 39, ये सब। तो ये सभी सर्जरी जो है वो कंसर्न्ड जो विशेषज्ञ हैं शल्य में, शलाक्य में, वो अपनी अपनी विशेषज्ञता के अनुसार जो है वो सर्जरी कर सकते हैं। उसमें किसी भी तरह का कोई मनाही नहीं है उनको। फिर आता है एमटीपी एक्ट। खासतौर पे जो फीमेल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपके पास किसी भी तरह से आपको ये मनाही नहीं है कि आप जो डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज में या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में जो
इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो रख सकते हैं। इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप उनको नहीं रख सकते हैं, लेकिन एमटीपी एक्ट ये भी ध्यान रखने लायक बात है कि कई बार इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो हैं वो हरास करने के लिए लोगों को गलत मिसगाइड करके, क्योंकि हम लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो हरास करते हैं। तो ये चीज आपने नोट रखनी है कि कभी भी जो एमटीपी एक्ट है वो नॉन वायबल फिटस पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। एमटीपी एक्ट 2021 एंड 1971 बोथ, अभी इसको अमेंड कर दिया है, एमटीपी एक्ट 2021 हो गया। तो इट इज इम्प्लीमेंट ओनली ऑन द वाइएबल फिटस, नॉट ऑन द नॉन वाइएबल फिटस। जहां भी नॉन वाइएबल फिटस है वहां पे एमटीपी एक्ट नहीं आएगा। लेकिन हरास करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एज सच ऐसा प्रोविजन एमटीपी एक्ट में नहीं है। हाँ, उसमें जो है अगर आप टर्मिनेशन करते हैं नॉन वायबल फिटस की तो आपको कंसेंट तो हर पेशेंट की लेनी होती है। ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा इसमें बाकी कुछ तो ध्यान रखने लायक नहीं है, क्योंकि हम ये चीज़ें करते भी नहीं है, लेकिन बस उस चीज़ का ध्यान रखना है कि नॉन वायबल फिटस पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है। और इंस्ट्रूमेंट आप अपने उसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जस्ट रख सकते हैं, जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आप उन इंस्ट्रूमेंट्स को कहाँ यूज़ करते हो, डिलीवरी में यूज़ करते हो या किसी और प्रोसीजर में यूज़ करते हो, तो वो आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए। क्लिनिकल रिसर्च एंड ड्रग ट्रायल्स हैं जो उनकी फेजेस होते हैं, स्टेज 1 2 3 4। तो उसमें भी सबसे पहले तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जिसकी हमने पहले से बात की है, और जो पेशेंट है वो मेजर होना चाहिए, और उसके बिहाफ पे कोई भी जो है वो जो है कंसेंट नहीं दे सकता है। माइनर की आपने कभी भी क्लिनिकल ट्रायल कोई करना है तो उसमें नहीं लेना है, और उसको कोई भी उससे फिजिकल या मेंटल सफरिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए पेशेंट को। तो ये सभी आपने क्लिनिकल रिसर्च, इसकी फेज 1 जो है वो बहुत छोटा सैंपल उसमें लेते हैं, तो उसके अंदर उसकी टॉक्सिसिटी देखते हैं कि इसकी कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है। तो अगर स्टेज 1 पास करता है तो फिर वो क्लिनिकल ट्रायल जो है वो स्टेज 2 में जाता है, जहाँ पे उसकी इफेक्टिवनेस एक छोटे ग्रुप में देखते हैं और उसके साइड इफेक्ट्स देखते हैं। तो उसके बाद जो थर्ड है उसमें पूरी में एफिकेसी देखते हैं, थर्ड जो फेज है। और जो फोर्थ फेज है वो यूजली जो है पोस्ट मार्केट कई बार रहता है। उसमें जो है वो बहुत सारे मल्टी सेंट्रिक कई बार ट्रायल होता है कि कई सेंटर पे जो है वो मेडिसिन का ट्रायल चल रहा है। तो वहां पे उसको देखते हैं कि कितने से लोगों में इसकी इफेक्टिवनेस है। तो ये उसकी गाइडलाइंस है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी है। एक और चीज जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में है जो आपने ध्यान रखनी होती है, कहीं हमारे क्लिनिक्स पे जो है हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 वो अलाउड नहीं है। वो सिर्फ एलोपैथी डॉक्टर्स कर सकते हैं। हमारे बीएमएस डॉक्टर उसमें अभी एलिजिबल नहीं है फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये हो गया हमारा। हाँ, ये हम कंसेंट की बात कर रहे थे, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड। इम्प्लाइड इज कि जो पेशेंट हमारे पास आ गया, हमने ओपीडी में, हमने उसको आईपीडी में एडमिट कर लिया, ट्रीटमेंट दे दी, दैट इज इम्प्लाइड कंसेंट। उसमें आपने किसी भी तरह से उससे रिटर्न में कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। आपने उसको 2 दिन एडमिट रखा, कोई, हाँ, अगर आप प्रोसीजर करेंगे किसी भी तरह का तब आपने एक्सप्रेस कंसेंट जो है वो उसकी लेनी है। रूटीन में आपने एडमिट किया, रूटीन की ट्रीटमेंट दी, कोई आपने प्रोसीजर नहीं किया, देन यू आर नॉट नीड टू टेक द एक्सप्रेस्ड कंसेंट। एक्सप्रेस्ड कंसेंट मतलब रिटर्न में आपको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही माना जाएगा कि पेशेंट अपने पास, आपके पास चल के आया ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो इसका मतलब उसकी कंसेंट थी इसलिए वो आपके पास आया। तो दैट इज नोन एज द इम्प्लाइड कंसेंट। और देन प्रॉक्सी कंसेंट, कि अगर पेशेंट जो है वो साउंड एनफ नहीं है, वो इस तरह से बीमारी में है कि वो कंसेंट देने के काबिल नहीं है, देन इट, कोई उसका रिलेटिव जो है, उसके फादर हैं, उसके हस्बैंड हैं, या उसकी वाइफ है, या उसका ब्रदर है, या उसकी सिस्टर है, वो कोई जो है उसमें क्लियर रेगुलेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि पेशेंट जो है वो इस तरह की स्टेट में नहीं है कि वो कंसेंट देगा, तो आपने जरूर उसके जो नियर एंड डियर वंस हैं उनमें से किसी एक की कंसेंट जो है वो ले लेनी है। ब्लैंकेट कंसेंट की हमने बात कर ली थी कि ब्लैंकेट कंसेंट जो है मान्य नहीं होती है एक स्पेसिफिक डिजीज की, उसकी आपने कंसेंट जो है लेनी है। फिर हम, अब आपने, अभी तक हमने जो है वो सारा डिस्कस किया कि आपके ऊपर क्या क्या इम्प्लीमेंट है। आप कहोगे कि हमें क्या मिला, है ना, ये तो सभी सभी कुछ सारा कुछ कानून का था जो आपके ऊपर लागू हो रहा है। तो
आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, आपके पास क्या प्रिविलेजेस हैं। तो इसके बारे में पहले बहुत ज़्यादा कहीं कुछ डिस्क्राइब नहीं था। एनसीएसएम ने 2023 में इसके बारे में जो है वो रेगुलेशन पास किया, और जो है वो आफ्टर वेटिंग फ्रॉम द लॉ मिनिस्ट्री वो पब्लिक डोमेन में आया। तो अभी वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट है। उसमें आपको बहुत सारे राइट्स हैं। पहले ये पता नहीं था कि हमारे जो स्पेसिफिकली जो न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, जो पुराने वाले हैं वो वैद्य लगाते हैं। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही लगा सकते हैं एज पर दीज रेगुलेशंस। क्योंकि कोई अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहे तो पहले एजेंसीज कई बार कहीं बहुत सारे आता था सुनने में कि डॉक्टर नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ वैद्य ही होते हैं या हकीम होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो हकीम होगा वो भी डॉक्टर लगा सकता है, जो वैद्य होगा वो भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। और जो सोवारिक है वो जिस 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 भी कंसर्न थेरेपी में जो जो भी जिसका नाम है उसके अलावा जो डॉक्टर शब्द है वो कानून के हिसाब से अब जो है मान्य है, आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो आपको चीज करनी होगी वो आपको कंसर्न स्टेट में जो आपका काउंसिल है या बोर्ड है आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को जो कंट्रोल करता है उसमें आपको रजिस्टर होना होगा। तो आपके पास यू हैव द लीगल अथॉरिटी टू प्रैक्टिस इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन विद इन द jurisdiction specified within the state in which you are registered, and it protects both practitioners and patients। प्रैक्टिशनर्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उनको प्रिविलेजेस मिलते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। पेशेंट्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उनको जो है वही डॉक्टर ट्रीट कर सकेगा जो कंसर्न स्टेट में रजिस्टर होगा। अनएथिकल प्रैक्टिस जो है, अनएथिकल अनरजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर है वो ट्रीटमेंट देने के लिए मान्य नहीं है। तो इससे जो है क्वालिफाइड इंडिविजुअली जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और पेशेंट को जो है स्किल्ड केयर दे सकते हैं। ये डॉक्टर का हमने डिस्कस कर लिया। कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट जो आप जो किसी भी एजेंसी को चाहिए वो आप दे सकते हैं। आपको फिजिकल फिटनेस का देना है या मेंटल हेल्थ का देना है, वो सभी सर्टिफिकेट जो हैं वो आप अथेंटिकेट कर सकते हैं और उनको विद क्रेडिबिलिटी किसी भी कंपनी को, किसी भी एजेंसी को, वो किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसी को वो चीज़ आपकी माननी होगी। हाँ, राइट टू प्रैक्टिस इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। प्रैक्टिशनर जो है वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की प्रैक्टिस कर सकता है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज टीचिंग एंड ट्रेनिंग। जितना आपने सिलेबस में पढ़ा है या उसके बाद आपने कोई स्पेसिफिक जो है वो ट्रेनिंग ली है तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इस तरह की क्वेरी आती है, आपके पास कोई इस तरह का कोई अथॉरिटी से लेटर आता है कि ये आप चीज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो आपने सबसे पहले आपका सिलेबस देखना है। डाउनलोड हो जाएगा, एनसीएसएम की वेबसाइट पे है, दोनों पुराने भी नए भी। तो उसमें जो जो चीज़ें लिखी हैं, वेदर इट इज़ आयुर्वेदिक, वेदर इट इज़ मॉडर्न, तो जो जो उसमें लिखा है उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो जो इंस्ट्रूमेंट उसमें लिखे हैं, क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वो आप चैप्टर 3 के अंदर मेंशन्ड है बोर्ड ऑफ एथिक्स के रेगुलेशन में, आई थिंक क्लॉज 17, 18 एंड 19, 2021 है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आपके सिलेबस में है, आप कोई भी मेडिसिन जो आपके सिलेबस में है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये है। इमरजेंसी में आप कोई भी प्रोसीजर कर सकते हैं, उसमें आपको छूट दे दी है। ये यूथनेशिया के बारे में ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूथनेशिया छोटा सा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो पेशेंट कई बार टर्मिनली इल होते हैं तो उनको जो है मतलब उनकी सपोर्ट हटा दी या उनसे हमें ऐसा लग रहा है कि वो रिकवर नहीं होगा, उसको वेंटिलेटर पे ही रहना पड़ेगा। तो वो सब उस कंडीशन में क्या करते हैं कि पेशेंट को इससे अच्छा इतनी बुरी हालत से गुजर रहा है तो उसके जीवन का ऐसे का क्या फायदा। तो उस स्थिति में क्या होता है कि अगर हम पेशेंट की जो है वो जो स्पोर्ट है वो हटा दें तो उसको पैसिव यूथेनेसिया बोलते हैं। और एक्टिव यूथेनेसिया होता है कि किसी को जबरदस्ती जो है वो कोई पॉइजनस सब्सटेंस देके ऐसी टर्मिनल उसकी स्थिति से उसका छुटकारा करना। इंडिया के अंदर जो एक्टिव यूथेनेसिया वो अलाउड नहीं है। पैसिव यूथेनेसिया अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पेशेंट और ऑफ द रिलेटिव
क्लोज रिलेटिव, उसको पैसिव यूथनेसिया दिया जा सकता है, उसकी सपोर्ट हटा के। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति है कि जहां से उसका वापिस आना मुश्किल है, ठीक होना मुश्किल है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो उसको कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अभी सेशन इज ओपन फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेहता जी, बहुत शानदार आपने लेक्चर दिया, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैं जानना पांडे चाह जी। रहा था, जी सर, मैं जानना चाह रहा था सर कि आप चिकित्सा अधिकारी जो अपना या डॉक्टर है वो मैक्सिमम कितने दिन का मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकता है छुट्टी के लिए? पांडे जी अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग कितना भी दे सकता है, उसमें किसी भी तरह की कोई मनाही नहीं है। जिस तरह की डिजीज है उसके डिजीज स्पेसिफिक आप उसको रेस्ट दे सकते हैं। अच्छा, दिन का कोई बाध्यता नहीं है कि 1 महीना के दें, 15 दिन का दें, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है? नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, बाकी आज का लेक्चर बहुत अच्छा रहा आपका, काफी कुछ थैंक यू सीखने को पांडे जी। मिला मैं। जी, बड़े बड़े धन्यवाद। भाइयों का आशीर्वाद है। अरे नहीं 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 सर, अच्छी बात सर, बहुत अच्छा लगा। जी, थैंक यू। किसी और माननीय वैद्यगण की कोई क्वेरी? जी, Thank you, sir. If anyone is having any doubts, you may please ask to sir. Do we have any questions? Hello, excuse me. Okay, am I audible, please? पार्डन? सुनाई पड़ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. For example, the company mislabeled the drug. वो हमें पता नहीं चलता है कई बार। फॉर एग्जाम्पल, एक तेल है, वो हम समझे महानारायण तेल, और उसमें कुछ और तेल है, लेबल मिसलेबल हो गया। हमने एक्सिक्यूट किया, एडमिनिस्टर किया जैसा वस्ती वैसा, तो पेशेंट गॉट सम कॉम्प्लिकेशंस। तभी ऐसा केस कैसे डील करना है? है इनकी? हाँ, हेलो, परिमान सर आपकी आवाज साफ नहीं आती है। आपका मतलब आपका वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है। Am I audible, sir? हाँ, आप ऑडिबल है। यू आर ऑडिबल। Sir, please repeat your question. का बराबर नहीं है, तो स्पीकर का मतलब ब्रेकिंग है। Sir, please repeat your question. सर, फॉर एग्जांपल, द ड्रग परचेज्ड फ्रॉम द शॉप और डीलर and that medicine was mislabeled. For example, we purchased Mahanarayana Tailam, the label was Mahanarayana Tailam, and the inside content was something different. समझ में हेलो? हाँ, समझ में आ रहा हेलो, है जी, आप कंप्लीट करिए। हाँ, तो अभी उसको हमने एडमिनिस्टर कर दिया, तो फॉर एग्जांपल वस्ती दे दिया, द पेशेंट गॉट कॉम्प्लिकेशंस। तो ऐसा केस में हु इज रिस्पांसिबल, हाउ टू डील द केस? In this case, the manufacturing unit is the responsible, because that has misled both the doctor as well as the patient. They have written the name Mahanarayan Tel, but the ingredients in the bottle are different from the Mahanarayan Tel, and or the content is different from the Mahanarayan Tel. In this case, the company is liable to be sued under the misbranded label, misbranded drug. But for example, for patient, the patient will make responsible
आज डॉक्टर को रिस्पॉन्सिबल करेगा, उनको मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है। तो ऐसा मतलब पेशेंट को हम कैसे कन्विंस करें, क्या करें? नहीं, वो आपको प्रूव करना होगा कि वो उसमें जो है कंटेंट है वो अलग थे, वो महानारायण तेल नहीं था। आपके कहने मात्र से नहीं होगा, आपको वो चीज दिखानी होगी, बाई टेस्टिंग आपके उसकी करानी होगी, उसी बैच के किसी और सैंपल को लेके उसको आप ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी से टेस्ट कराइए कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो महानारायण तेल के हैं या किसी और के हैं, सेम बैच की मेडिसिन को। ओके, थैंक यू। जी। Any other query, please? Dr. Garima, I think we can conclude the session. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. On behalf of the organizing committee, I would like to thank Dr. Rajiv Mehta, sir, for delivering such insightful lecture. I would like to extend my sincere gratitude to our mentor, Vaidyadevan Trigunaji, President GBRAV, for his continuous support, guidance, and blessings. I thank our director, Dr. Vandana Siroha ma'am, who is the guiding force for all the events at RAV. I would also like to thank Vaidya Rajesh Koteja ji, Secretary, Ministry of Ayush, for his participation and encouragement in all our endeavors. Most importantly, I would like to express heartfelt thanks to all the gurus, shishyas, and other scholars who with their presence and active contribution make this webinar a successful one. Last but not the least, I thank each member of the RAV organizing team who worked behind the stage to make this event a successful one. Thank you, sir. Thank you, Dr. Garima. Thank you, Adaniya Vaidya Devendra Triguna ji. Thank you, Adaniya Secretary Ayush Rajesh Kotecha ji. Thank you, Vandana Siroha ma'am, Director RAV, for giving me chance to give this talk in such an knowledgeable audience. Thank you very much.